So today we're going to do population composition. It is the third chapter of your book, Fundamentals of Human Geography. Yes, sir. Hanesh, Yes, sir. so what is population? First, tell me this. What do Population you is the mean by number of people population? living. Population is the number of people living in a certain geographical area at a Mhm. particular time. Okay, good. Population is the number of people living in a geographical area over a period of time. It's called population. है ना? Now, what is Yes, sir. composition? What is composition? कंपोजिशन मतलब सर वहाँ पे दोनों मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन Okay. So there can be और नंबर different ऑफ पीपल different लिविंग इन द constituent of कंट्री. anything. Like we know about composition of air in our atmosphere. यस सर. है ना? Like there are nitrogen, oxygen, carbon dioxide. उसी तरह हमारे population के भी क्या है अलग अलग composition है ना? यस सर. So we can divide our population in a number of ways. Like we can divide our population on the basis of sex, on the basis of occupation, on the basis of education, on the basis of life expectancy. So on the basis of all these things, when we divide population, that is called पॉपुलेशन कंपोजिशन. population, a population composition. So write it down the meaning of a definition of population composition. यस सर. लिखो population composition पॉपुलेशन कंपोजिशन. मैं भी ले देता हूँ. यस सर. Population composition represents the diversity represents the of people diversity of people of a country in relation to age, sex, place of residence, occupation, education, etc. This is also known as demographic structure of a country. Of a country. Okay, so do you know what is population attributes or attributes of population? attribute. Yeah. No sir. याद नहीं. Okay. So basically, when we say that sex, age, residence, occupation, education, these all are attributes of population. Population. And when we divide population on the basis of all those things, it is called population composition. Now, why we do this? You need to understand why there is a need to study population composition. Because in order to understand population, you know, in a better form or Yes, better sir. way, it is very much important to understand its different constituent.
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। पॉपुलेशन को अच्छे से बेसिकली समझने के लिए अपने देश की जो भी पॉपुलेशन है, हम क्या करते हैं उसको, उसके जितने भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं यस अलग सर। अलग बांट के, ताकि अच्छे से हम लोग पॉपुलेशन को समझ सकें कि पॉपुलेशन क्या है, कैसे ग्रो करता है, क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच एसेंशियल to read population on the basis of its different constituent एट्रीब्यूट्स। or attributes. Okay, यस सर। so let us see what it is saying. People of a country are diverse in many respects. What is saying that the for any country, है ना, its people are very diverse. They are diverse in a many way, like people can be distinguished by their age, sex and their place of residence, है ना। हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके एज से, उनके सेक्स से, वो कहाँ रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, कितना लेवल तक उन्होंने पढ़ाई की है ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। इन सब चीजों यस से हम लोग सर। क्या कर सकते हैं, लोगों को अलग अलग बांट सकते हैं, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोस थिंग वी कैन डिवाइड आवर population. यस सर। Okay, यस सर। okay, the first topic is sex composition. What do you mean by sex composition? Yash? मतलब सर मेल और फीमेल जो होते हैं मतलब। हाँ, so population of or composition of population on the basis of its sex, है ना। यस सर। तो कितने प्रकार का हो जाएगा, बेसिकली 2 प्रकार का, है ना। नंबर ऑफ यस वुमेन सर। एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना। यस सर। इसी को हम लोग सेक्स कंपोजिशन को भी हम लोग सेक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं, है ना। लाइक सेक्स कंपोजिशन, राइट इट डाउन, सेक्स कंपोजिशन रिफर्स टू sex composition refers to the number of men and women in a country. It is taken out as a sex ratio, which is the ratio between the number of men and women, है ना। यस, यस सर। सो मैंने तो यहाँ पे बिटवीन को B/W लिखा, लेकिन आपको कैसे लिखना है, पूरी की पूरी बिटवीन। स्पेलिंग लिखनी है। ओके, सो व्हाट इज सेक्स रेशियो? बेसिकली इट इज द रेशियो between the number of men and women, वुमन। है ना। And how can we find or calculate the sex ratio? We can divide the male मेल population पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन। into सॉरी। 1000, यस है सर। ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स सेक्स कंपोजिशन। कंपोजिशन निकालते हैं, है ना। खास करके देखा जाए तो ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से निकाला जाए। बहुत सारे कंट्री में मेल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है फीमेल पॉपुलेशन से, है ना। लेकिन अपने इंडिया में बेसिकली फीमेल पॉपुलेशन को नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन से क्या किया जाता है, डिवाइड। डिवाइड किया जाता है इंटू 100 इंटू 1000 करके, यस सर। है ना। तो
बेसिकली क्या होता है कि पर 1000 मेल कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो सेक्स बोलते हैं, कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो बोलते हैं, है ना। यस सर। बेसिकली इट इज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। मेल्स। ओके, यस सर। so now why it is important to know the sex ratio of any country, है ना। The important question is why do we need to know about sex ratio, और क्या बताता है सेक्स रेशियो आपको किसी भी कंट्री के बारे में, है ना। यस, यस सर। so let's suppose in a region where gender discrimination is rampant, the sex ratio is bound to be unfavorable to women। क्या बोला कि बहुत सारे रीजन या वो जगह जहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग क्या देखने को मिलता है कि सेक्स रेशियो बेसिकली क्या मिलता है हमको, अनफेवरेबल मिलता है। या हम लोग इसका अपोजिट भी वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कि जिस एरिया का या जिस जगह का सेक्स रेशियो कम है, जहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कम है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे क्या है कि ऐसे कंडीशन है विच आर नॉट फेवरेबल टू द वुमेन, यस सर। है ना। वैसे बेसिकली देखा जाता है वैसे एरिया में क्या होता है, एरियाज सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवेलेंट। वैसे एरिया में क्या होता है कि फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस उन लोगों पे ज्यादा होता है। वैसे एरिया में जहाँ पे देखा गया है कि सेक्स रेशियो क्या है, बेसिकली कम है। One of the reason would be lower socio-economic status of women in this area। और एक रीजन ये हो सकता है कि उन सब एरिया में क्या है, जो वुमेन का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है, कम है, या बेसिकली एज कंपेयर टू द मेल। You मैन। must remember that more women in the population does not mean that they have a better status। और मैं यहाँ पे एक और बात बता रहा हूँ, हम सबको भी याद रखना चाहिए कि पॉपुलेशन में अगर ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका स्टेटस क्या है, बेटर है। इट कुड बी मेन दैट मेन माइट हैव माइग्रेटेड टू द अदर एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि गांव में बेसिकली इंडिया में देखा जाता है तो जो नंबर ऑफ फीमेल्स है आर मच मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। मेल, because for various purpose like job, male migrate from their place of origin to place of destination। ओके, यस सर। सो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा एक और चीज बताया गया है कि नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल एडवांटेज। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि फीमेल के पास क्या है, बायोलॉजिकल एडवांटेज है ओवर मेल, एज दे टेंड टू बी मोर रिजिलियंट देन द मेल, yet this advantage is cancelled out by the social disadvantage and the discrimination that they face। now अब हम थोड़ा जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लेवल में सेक्स रेशियो क्या है। वर्ल्ड के लेवल में जो सेक्स रेशियो है उसको पर 100 फीमेल्स के हिसाब से देखा जाता देखते हैं। है ना। तो ऑन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स द सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। मेल्स। तो अगर फीमेल। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का अगर ऑन एवरेज सेक्स रेशियो क्या है, 102 मेल्स पर 1000 पर 100 फीमेल्स। ओके, यस सर। है ना। और आपके बुक में बताया गया है कि लेटविया क्या है, ऐसा कंट्री है जिसका सेक्स रेशियो सबसे क्या है, हाईएस्ट है। एंड कतर, कतर का क्या है, सबसे लोवेस्ट है। लोएस्ट है। बट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट यूएई हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, यस सर। अगर आपके एग्जाम में पूछता है विच कंट्री हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, देन यू हैव टू आंसर यूएई। ठीक है, यस। यस सर। हाँ, और ये भी पूछता है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, then you have to mark Latvia, and when it comes to lowest then you have to mark UAE। okay, यस सर। now according to United Nation, there are 72 countries which are unfavorable for women। okay, the world यस pattern सर। of sex ratio does not exhibit various
variations in the developed region of the world. The sex ratio is unfavorable for females in 139 countries of the world and unfavorable for them in the remaining 72 countries listed by United Nations. In Asia or in general, Asia has a low sex ratio. Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. खास करके जो एशिया के जो मैक्सिमम कंट्री हैं जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया, सऊदी अरबिया, इन सब कंट्री का जो सेक्स रेशियो क्या है, लो है, कम है ना. उसके अलावा हम लोग देखते हैं जो यूरोप हो गया, जो यूरोपियन कंट्री हो गया, वहां पे बेसिकली क्या है कि वहां पे सेक्स रेशियो क्या है, ज्यादा है. On the other hand, on the other extreme, it is greater part of the Europe, including Russia, where males are in minority. ठीक है. A deficit of males in population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male-dominated out migration to different parts of the world in the past. और ऐसा देखा गया है कि एट्रीब्यूट से देखा गया है कि जहां भी मेल डेफिसिट में है, कम नंबर में है, वहां पे क्या देखा गया है कि जो वुमेन का जो स्टेटस है क्या है, इट इज बेटर. ओके. यस सर. So I hope you understand what is composition of population and what is sex composition. Yes sir. है ना. तो बेसिकली सेक्स कंपोजिशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ अ कंट्री. है ना. और सेक्स रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल. जिसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल बाय 1000 इनटू 1000. ठीक है, नॉट बाय. यस सर. ओके, ठीक है ना. यस सर. हाउ कैन यू डिफाइन सेक्स रेशियो? सर मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन बाय 1000. Okay, that is the way to calculate, but in words, how can you define? You can define it is the ratio of male population by female population. Okay, it is a ratio of number of men and women. Or you can say that sex ratio is the number of female per 1000 male. ठीक है. Yes sir. Okay. Now the another topic is age structure. Now what is age structure? अब age structure क्या है? It is a new concept for you. Basically age structure क्या बताता है? It represents the number of people of different age group. है ना. age structure क्या बताता है कि let's suppose आपने group बना दिया. Let's suppose you made a group of people from 0 to 4 year and 5 to 9 year, 9 to 15 year, है ना. Yes sir. ऐसा हमने ग्रुप बना दिया. तो एज स्ट्रक्चर क्या बताएगा? एज से बताएगा कि 0 से 4 साल में कितनी पॉपुलेशन है, अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल. अभी तक हम लोग मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं कि 0 से 4 में कितने मेल है कितने फीमेल है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इन डिफरेंट एज ग्रुप, है ना, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप. That is called age structure. क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. ठीक है ना. Yes, लोग पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. हम लोग बांट सकते हैं 0 से 5 साल, 5 साल से 9 साल, 0 से अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो अलग अलग ग्रुप की पॉपुलेशन भी अलग अलग होगी. Yes, sir. है ना. लेट सपोज अपने स्कूल को तुम क्या मान लो, अभी कोई एक कंट्री मान लो X. ओके. Yes, sir. तो हर क्लास में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, है ना. तो लेट सपोज जिनका एज 3 से 6 होगा तो कौन से क्लास में होंगे? हो सकता है कि नर्सरी से लेकर क्लास 1 और 2 के बीच में होंगे, है ना. तो उनकी पॉपुलेशन अलग होगी. जिनका एज 7 to 12 होगा उनकी पॉपुलेशन अलग होगी स्कूल में, है ना. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर. इट बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. ठीक है. Yes, sir. वो एज ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19,
है ना, 20 to 24, ये सब क्या है, अलग अलग एज ग्रुप के पॉपुलेशन है। population. Yes, sir. Now this is an important indicator of population composition since ये हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये भी एक तरह से कंपोजिशन ही, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एज के हिसाब से पॉपुलेशन को बांट दिया है ना। Yes, sir. पहले हमने सेक्स कंपोजिशन में सेक्स के हिसाब से अपने पॉपुलेशन को बांट दिया है ना, कि इतनी Yes, परसेंट sir. पॉपुलेशन मेल है और इतनी परसेंट पॉपुलेशन क्या है, फीमेल है। Female है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज वी आर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन। लाइक लेट सपोज 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से इतनी पॉपुलेशन इस एज की है और इतनी पॉपुलेशन अलग एज की है ना। तो दैट Yes, इज sir. कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग पॉपुलेशन का जो एज होता है क्या होता है, वो 15 टू लेके 59 ईयर्स। 59. सो क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। A बोलते हैं। greater proportion of population above 16 represent an aging population। और मान लो हम लोग को मालूम चल गया एज स्ट्रक्चर के थ्रू कि 60% से 60 से लेकर 70 या 16 एबव के पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग बोल सकते हैं कि उस देश में क्या है, एजिंग पॉपुलेशन क्या है, Aging ज्यादा है, population या है। एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, या बूढ़े लोग उस देश 15 में to 59 years वाले लोग मतलब। ज्यादा है ना। Yes, yes, sir. एबव 16 जो हो गया, तो अगर ज्यादा है तो उनके ऊपर ज्यादा हमें खर्च करनी पड़ेगी हेल्थ फैसिलिटी पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे, है कि नहीं। Yes, sir. अगर पता चल गया हमको एज स्ट्रक्चर से कि 0 से लेकर 4 इयर्स के बच्चे की संख्या ज्यादा है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, है ना। अगर ये मालूम चल गया कि जो बच्चे हैं जो अभी एडोलोसेंट्स हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है, उनकी पॉपुलेशन, उनके एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे हमको बहुत सारे मेजर्स या पॉलिसी बनाने पड़ेंगे जो उनके लिए अच्छा हो, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली ये सारी चीजें करने का क्या फायदा है, ताकि एक तरह से भी फायदा कि गवर्नमेंट को अगर मालूम चलेगा डिफरेंट एज ग्रुप पे कितने पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट कैन मेक बेटर पॉलिसी फॉर दोज टारगेटेड ग्रुप्स। ओके। Yes, sir. Similarly, high portion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful। जो ये सारी चीजें हमको generation एज स्ट्रक्चर से पता चलती है। बता सके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एज सेक्स पिरामिड, है ना। अभी तक तो आपने मेरे ख्याल से अच्छा से तुम समझ ली होगी एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, इट इज सेम बेसिकली। क्या है, अभी तक हमने देखा कि हर एक एज ग्रुप में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ओके। Yes, sir. अब आपको देखना है कि उसी एज ग्रुप में पॉपुलेशन के साथ साथ कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। अब हम ये देखेंगे, ये हो गया अपना एज सेक्स पिरामिड। Composition. Oh, pyramid. पिरामिड, ठीक है। हमने एज Yes. स्ट्रक्चर में देखा कि लेट सपोज 0 to 4 में कितनी पॉपुलेशन है, ओके। Yes, sir. तो अब हम देखेंगे एज सेक्स पिरामिड में कि उस पॉपुलेशन में कितने लोग मेल हैं और कितने लोग फीमेल हैं, है ना। लेट सपोज हमको मालूम चल गया कि 0 से 4 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 100 है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। ये तो Yes, 0 sir. से लेकर 4 साल तक के जितने बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन। अभी तो हमको ये तो मालूम नहीं चला कि 100 में कितने बच्चे बेबी गर्ल हैं और कितने बच्चे जो है बेबी बॉय हैं, या कितने मेल हैं कितने फीमेल है, ये हमको अभी तक मालूम नहीं चला, है ना। Yes, sir. तो एज सेक्स पिरामिड हमको ये बताएगा कि 0 से 4 या जो भी एज ग्रुप है उसमें कितने नंबर ऑफ मेल हैं और कितने नंबर ऑफ Female. Sir. फीमेल है, ओके। Yes, sir. So you understand the difference between age structure and age sex pyramid, Yes, sir. है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा बताता है। एज सेक्स पिरामिड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं बताता है किसी एज ग्रुप में, बल्कि ये भी बताता है कि उस एज ग्रुप में कितने मेल एंड फीमेल भी Female. है ना। The age sex structure of a population refers to the number of male and female in different age group, okay। Yes, sir. So it basically tells us in each age group how much is the number of male and how much is the number of female, okay। Yes, sir. A population pyramid
is used to show the age sex structure of a population। और जो population pyramid है वो क्या बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि population में age sex का structure कैसा है। ओके यस सर, से 3 टाइप के होते हैं ना। हाँ, ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, बहुत सही तुम बोल रहे हो। तो ऐसे पढ़ा हुआ है मैंने। okay, the shape of the population pyramid reflects the characteristic of population. The left side shows the percentage of male while the right side shows the percentage of female. फीमेल। And if you see the figure here, basically on the left side it is shown the percentage of male, on the right side it is shown the percentage of female, यस सर। है ना। और यहाँ पे देखोगे तो हर एज ग्रुप के बारे में है, बता रहा है कि 0 से 4 में लेट सपोज जितनी पॉपुलेशन है, तो क्या किया है, इस साइड में बता दिया कि इधर मेल पॉपुलेशन और इधर क्या है, फीमेल पॉपुलेशन है यस सर। है ना। अब देखा जाए तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं। सबसे पहला है जो पिरामिड है वो क्या बताता है हमको, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, है ना। The age sex pyramid of Nigeria, as you seen, is a triangular shaped pyramid with a wide base and the typical of less developed country, है ना। और जो बेसिकली ये सारे जो हैं, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो ट्रायंगल शेप्ड पिरामिड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड होता है, वो किस टाइप के कंट्री का होता है ना, डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्री। तो बेसिकली क्या है, हम लोग देखते हैं उसी कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जो क्या है, या तो डेवलपिंग है नहीं तो अंडर डेवलप्ड है ना। यस सर। तो these have higher population in lower age due to the high birth rates। और जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है या जिस भी कंट्री का जो एज सेक्स पिरामिड ट्रायंगल के जैसा है, ओके, तो Yes, उनकी sir. क्या खासियत है, उनका एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, और साथ में भी देखा गया है कि जो लोअर एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है, जैसे 0 to 4 में, वो क्या है, काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाई बर्थ रेट। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि 0 to 4 में क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, Yes, sir. है ना। तो इफ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश एंड मेक्सिको इट वुड बी द सेम। अगर हम लोग बांग्लादेश और मेक्सिको का भी पिरामिड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको इसी प्रकार का मिलेगा, क्योंकि ये सारे कंट्री क्या है, लेस डेवलप्ड है, अभी क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। ओके यस। Yes, sir. तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन सबसे पहला टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है। सेकेंड जो है वो है कांस्टेंट। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन क्या है वो कांस्टेंट है ना। ये बेसिकली बर्थ Yes, रेट sir. एंड डेथ रेट आर सेम। ओके, Yes, sir. ये ऐसा देखा गया है, ये बेल शिफ्ट होता है, खास करके जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो हो गया, दिस शोज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैज ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। एज अ नेम सजेस्ट कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा होता है, आपको याद रखना है, कैसा होता है, बेल शिफ्ट होता है। Yes, sir. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। If the Yes, birth sir. rate and death rates are equal, it means that the population is near constant. Okay. Yes, sir. Now the third type of population pyramid is declining population. इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली the population is declining। तो खास करके जो डेवलप्ड कंट्री है, उसमें भी खास करके जो जापान है, इसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द हायर एज ग्रुप इज हाई। जो जिनकी एज ज्यादा है उनकी संख्या बेसिकली क्या होती है, इसमें ज्यादा ज्यादा हाई। होती है, हाई होती है। तो जापान पिरामिड हैज अ नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप showing low birth rate and death rate. The population growth is in developed country is usually 0 or negative. नेगेटिव। ओके, तो ये हो गए अपने अलग अलग प्रकार के, क्या हो गया, पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड हो गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन, है ना। यस देखो सर। एक बार हमेशा याद रखो कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, कि
हम लोग पॉपुलेशन को चाहें तो जितने नंबर में चाहे उतने नंबर में बांट सकते हैं, है ना। लेट सपोज तुम्हारा क्लास है, तो क्लास के तुम जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। या तो तुम बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जो बच्चे मेल है या फीमेल है, गर्ल्स और बॉयज हैं, उनके हिसाब से क्लास को 2 ग्रुप में बांट सकते हो, है ना। यस सर। या तो तुम उनके एज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हो, या तो किस एरिया से आए हैं, कौन कितने बच्चे अर्बन से बिलोंग करते हैं, कितने बच्चे रूरल से बिलोंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी क्लास के पॉपुलेशन को बांट सकते हो, है ना। यस तुम सर। अलग भी बोल सकते हो कि कौन से बच्चे हैं जिनके घर में मदर टंग हिंदी है और कौन से बच्चे हैं जिनके घर में मदर टंग इंग्लिश है, तो लैंग्वेज के हिसाब से ही बांट सकते हो, है ना। यस सर। इस हिसाब से ही बांट सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में है ना। यस सर। तो बेसिकली वी कैन डिवाइड पॉपुलेशन इन अ नंबर ऑफ वेज, है ना, बेस्ड ऑन द यस सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ये सब क्या है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, कितने लोग नॉन वर्किंग हैं, कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं। इन सब के आधार पे जब हम पॉपुलेशन को बांटते हैं ताकि हम लोग पॉपुलेशन को अच्छे से समझ सकें, so that we can have a better understanding of population, that is called population composition. Okay, यस सर। now what is rural urban composition? अब नाम से पता चलता है बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, रूरल अर्बन में क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहर सिटी में। शहर में रहते हैं, है ना। तो देखो, द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड on the residence. The division is necessary because rural and urban lifestyle differ from each other in terms of their livelihood and social condition. और इससे हमको बहुत सारी चीजें मालूम भी चल जाएंगी अगर हमको पता चले, क्योंकि देखा जाए तो जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल या जीने का तरीका है, वो शहर और गांव में क्या होता है यश, अलग अलग होता है ना। उनके लाइफ स्टाइल अलग है, उनके कल्चर अलग है कि नहीं। यस सर। The age, sex, occupational structure, density of population and level of development vary between different or rural and urban areas. Okay. यस सर। Now, अब देखो क्या है, एक तो और बात हमको समझनी है कि हम लोग बेसिकली कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है अर्बन है और कौन सा एरिया है जो रूरल है ना। तो यस बेसिकली सर। देखा जाए तो we call those area as rural area where almost 75% of people are engaged in primary activities, है ना। वो सारे यस सर। रीजन जहाँ पे लगभग 75% से एबव जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर इंगेज्ड है, तो वैसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल एरिया बोलते हैं, रूरल। है ना। इन जनरल terms, rural areas are those where the people are engaged in primary activities and urban areas are those where majority of the working population engaged in non-primary activities. तो ये तो डिफरेंस हो गया। ओके, यस नाउ सर। फिगर देखें हम लोग 3.4 फिगर कहाँ पे है 3.4, तो ये बता रहा है कि अलग अलग कंट्री में रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन कैसा है ना। यस सर। So, excuse me, the rural and urban differences in sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite of those in Africa and Asian country. क्या बोल रहा है कि जो कंट्रीज बेसिकली यूरोप के कंट्री हैं या कनाडा या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि फिनलैंड, इन सब का जो सेक्स कंपोजिशन है या जो सेक्स रेशियो है वो बेसिकली क्या है, अपोजिट है इन कंट्रियों से, अफ्रीकन कंट्री एंड एशियन कंट्री से। ओके, क्यों ऐसा देखो, इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर्स फीमेल in rural areas and female outnumbers the male in urban areas,
ऐसा देखा गया कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे मेल क्या है, वो आउट नंबर है फीमेल से इन द रूरल एरियाज, एंड फीमेल्स आर आउट नंबर इन द urban areas. Okay. Yes, sir. But in countries like Nepal, Pakistan, in India, the case is reverse. लेकिन जब हम लोग अपने एशिया के मैक्सिमम कंट्री के बारे में बात करते हैं तो एक केस क्या है, बिल्कुल हमको उल्टा देखने को मिलता है. The excess of female in urban areas of USA, Canada and Europe is a result of influx of female from rural areas to avail of the vast job opportunity. बेसिकली जो हम लोग देखते हैं कि अपने जो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में बेसिकली तो नंबर ऑफ जो फीमेल है वो गांव में ज्यादा है ना. Yes, sir. क्योंकि मेल ज्यादा माइग्रेट करते हैं गांव से जॉब को लेके, और महिलाएं बेसिकली जो है फीमेल है वो गांव में ही रहती हैं. लेकिन जो क्या बोल रहा है, जो यूएसए और कनाडा या जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे फीमेल का पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब में क्या है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. इसका आंसर बेसिकली वहां पे ऐसा है. फार्मिंग ऑन दीज डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली इन द मेल ऑक्यूपेशन. और गांव में बेसिकली वहाँ के रूरल एरियाज में जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जो फार्मिंग है वो क्या है, मैकेनाइज्ड है, बेसिकली मशीन द्वारा ही होता है. और अभी तक देखा जाए तो लार्जली वो उसको मेल ही संभालते हैं. By contrast, the sex ratio in Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of male migration. अब क्या बोल रहा है कि जो सेक्स रेशियो है एशियन कंट्री में, खास करके एशियन कंट्री के अर्बन रीजन में, वो क्या है, मेल डोमिनेटेड है. क्योंकि जो माइग्रेशन भी है वो कैसा है, मेल स्पेसिफिक है ना. गांव से अधिक कौन से लोग आते हैं शहर में, जो कौन है, मेल है. ओके, दैट इज वाई the number of male in the urban area is more than or higher than the female. Yes. It is also worth noting that in countries like India, female participating in farming activity in rural area is fairly high. और यहाँ पे बोल रहा है कि एक चीज और आपको ध्यान देने की बात क्या है कि कंट्री लाइक इंडिया में जो देखा जाए तो फीमेल है वो फार्मिंग एक्टिविटी में देखा जाए तो उनकी एक्टिविटी और एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा है. शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. पॉसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे यश? किसका सर? PAUCITY, पॉसिटी. पता नहीं सर. पॉसिटी मींस स्कार्सिटी. ओके, स्कार्सिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. स्कार्सिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. ठीक है, कमी, उसको बोलते हैं पॉसिटी और स्कार्सिटी. अब जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज, ये सब क्या है, बेसिकली कारण है जिसके कारण से महिलाएं क्या है वो डिस्करेज्ड है या वो इतना फ्रीक्वेंटली माइग्रेशन नहीं कर पा रही हैं रूरल से अर्बन एरियाज में. ना व्हाट इज माइग्रेशन यश? Migration is people, मतलब shifting of people from one place to another. Okay, not shifting, basically the movement of people from one place to another, है ना. And always add why people move from one place to another, है ना. So the movement of people from one place to another in search of better opportunity, है ना. Yes. Yes, sir. It's called migration. Migration is of how many types? 4. Migration is of 2 types. हाँ, two internal और external. Internal and और international. है ना. And what are the causes of migration? Causes sir दो होते हैं, merit और demerit. No. दो कौन से causes होते हैं यश? Push and pull. हाँ, push and pull factor. Push and pull factor है ना. Because of these two reasons people migrate. Okay. Yes, now sir. literacy है ना. Now we can divide population also on the basis of their educational level or on the basis of literacy. Okay. Yes, sir. So एक बात आप समझ लो इस चैप्टर में कि हम लोग अपने पॉपुलेशन को there are number of ways on which we can divide our population.
तो सबसे पहले हमने अपने पॉपुलेशन को सेक्स के हिसाब से डिवाइड किया, फिर अपने डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया, फिर हमने रूरल और अर्बन के हिसाब से डिवाइड किया. नाउ वी आर डिवाइडिंग आवर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी. ओके, Yes, so sir. proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living. क्या बताता है कि जो किसी भी देश का अगर हम ये पता कर लें कितने लोग लिटरेट हैं, तो उससे हमको मालूम चल जाए कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है ना. सोशियो स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हमको मालूम कर सकते हैं अगर हमको मालूम चल जाए कि वहाँ का लिटरेसी लेवल कैसा है. लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी. अब क्या बोल रहा है कि अभी आपको ध्यान में देना जरूरी है कि किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो बेसिकली क्या है, वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना. Yes, sir. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी है कि अगर जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से योगदान दे पाएंगे उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ऐसा नो. Yes, sir. तो इन इंडिया लिटरेसी रेट्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर ऑफ एज. तो बेसिकली इंडिया में है जो हम लोग जो लिटरेसी रेट निकालते हैं वो 7 साल के ऊपर जो निकालते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एंड हैव द एबिलिटी टू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिकली इंडिया में वो सारे लोग लिटरेट हैं जो बेसिकली पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, और बेसिकली जो डेली की जो जरूरत की चीजें हैं उन सब चीजों का जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है अगर आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देन यू आर लिटरेट, है ना. तो इंडिया में बेसिकली Yes, ऐसा कोई sir. जोड़ नहीं है कि यू हैव टू पास योर 10th एग्जामिनेशन और सेकेंडरी और प्राइमरी एग्जामिनेशन. if you are able to read, write and understand the basic mathematical calculation, then you are literate. Okay, Yes, sir. बेसिकली अगर आपको हस्ताक्षर करने आता है अपना तो आप क्या हो इंडिया में, लिटरेट Literate. हो. ओके, नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको बताएगा कि कितने लोग क्या है, कौन सा जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग जॉब नहीं कर रहे हैं. और हमेशा याद रखना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम किस एज में निकालेंगे, जो ऑक्यूपेशनल वर्किंग एज है उसी एज में हम निकालेंगे, जो कि कितना है 15 to 59, है ना. Yes, sir. ये क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है. टेक पार्ट्स इन वेरियस ऑक्यूपेशन. क्या बताओ, वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज वुमेन and men of the age group 15 to 59 take parts in various occupations ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transport service, communication and other unclassified services. तो बेसिकली क्या है, हम लोग जो भी काम कर सकते हैं, जो हम लोग का वर्किंग है, हम लोग जो भी वर्क करते हैं या जॉब करते हैं, वो क्या करते हैं, इन सब चीजों में करते हैं. या तो हम लोग जो 3 सेक्टर है उनके अलावा उसी में करते हैं, 3-4 जो सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें हम लोग काम करते हैं, है ना. Yes, sir. यस. तो जो लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग में काम करते हैं वो लोग कौन से हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, है ना. कुछ लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, कुछ लोग टर्सरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, कुछ लोग क्वाटरनरी में भी काम करते हैं. तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन को बांट सकते हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो कौन से प्राइमरी में एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, कितनी है जो सेकेंडरी में इंगेज्ड है, और कितनी है जो टर्सरी में इंगेज्ड है ना. लेट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन के 25% लोग क्या है, जॉब करते हैं, है ना. Yes, sir. हम लोग इस 25% में बता सकते हैं कि 25% में जो 10% है वो प्राइमरी में है ना. और Yes, sir. इस तरह हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब हम लोग बांट सकते हैं पॉपुलेशन को, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं हम लोग. The proportion of working population engaged in all these 4 sectors is a good indicator of levels of economic development of a nation. This is because only a developed country or developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary sector. If the economy is still in the primitive stage, then the proportion of the people engaged in primary activities will be high as it involves extraction of natural resources.
तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा देखा गया है कि दोज कंट्री व्हिच आर डेवलप्ड, वहां पे ऐसा देखा गया है कि द वर्किंग पॉपुलेशन कौन से एक्टिविटी में ज्यादा इंगेज्ड है, बेसिकली इन द टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, जैसे आप yes, गांव और शहर में ही मिला सकते हो कि शहर में जो लोग ज्यादा लोग होते हैं वो कौन से सर्विस में काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करते हैं? सर्विस सेक्टर ये में, पार हाँ सर्विस सर्विस सेक्टर में, है यस ना। तो सर कोई भी अगर डेवलप कंट्री है तो ऐसा देखा जाता है कि डेवलप कंट्री में जो मैक्सिमम जो जॉब है वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है ना। और जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं। यस सर ओके, सो दिस इज अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर है ना। तो एक बार यस और हम सर लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है। यस सर पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, बताओ क्या लिखवाया था मैंने? जो अभी आपने आज लिखवाया था पॉपुलेशन कंपोजिशन हाँ, सर population composition represent the diversity of people of a country in relation to age, sex, place of residence, occupation, education, etc. This is also known as demographic structure of a country. डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री विद रिलेशन टू Yes, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हमने देखा सेक्स कंपोजिशन क्या है। बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ कंट्री, और इसी को हम लोग सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, जिसका मतलब है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। इसको निकालने का तरीका है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अपने इंडिया में देखा जाए तो इसको निकालने का तरीका है कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी अपने देश का सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। और इन वर्ड्स इफ यू वांट टू डिफाइन, तो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ओके, yes, sir. ये है। इसके बाद हमने देखा कि जो सेक्स रेशियो है, इससे बहुत सारी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या जो सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन है वो मालूम चलता है हमको किसी भी एरिया के बारे में। अगर हमको मालूम चल रहा है कि सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग है तो हमें बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो कंडीशन है जो वो अनफेवरेबल है वुमेन के लिए। हम लोग बोल सकते हैं वहाँ के हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो या कि वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड्स हो रहा हो। ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये देख के, किसी एरिया का सेक्स रेशियो देख के हम लोग बहुत सारी चीजें बता सकते हैं सोशल स्टेटस कैसा है। फिर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो एवरेज सेक्स रेशियो क्या है? 102 मेल्स पर 1000 पर 100 फीमेल। वैसे ही सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है? लेटविया का है। फिर सबसे कम देखा जाए तो किसका है? यूएई का है। आपके ये बुक में कटर दिया हुआ है दोस्तों, मे भी ये पुराना डाटा हो, बट yes, sir. एज ऑफ नाउ यूएई है द लोएस्ट सेक्स रेशियो। Ratio. तो ये सारी चीजें। फिर हमने देखा एज स्ट्रक्चर के बारे में। तो एज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ये क्या बताता है कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, ये बताता है हमको। और उसी के साथ हमने एज सेक्स पिरामिड देखा। तो ये तो एज सेक्स पिरामिड है, तो एज स्ट्रक्चर में आपको क्या ऐड कर देना है? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप बताता है ये, है ना। ये हर Yes, एज ग्रुप में sir. कितने मेल और फीमेल हैं ये भी बताता है। एज स्ट्रक्चर सिर्फ बताता है कि एक एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, और एज सेक्स स्ट्रक्चर है वो पॉपुलेशन के साथ साथ उस एज ग्रुप के पॉपुलेशन के साथ साथ उस एज ग्रुप में कितने मेल और कितने फीमेल हैं वो भी बताता है। एज सेक्स पिरामिड। और बेसिकली देखा जाए तो पॉपुलेशन पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो कि नाइजीरिया, Constant बांग्लादेश कांस्टेंट, एंड फिर से जो थर्ड टाइप declining. का है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जैसे जापान, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है बेसिकली जो ग्रोथ है वो आइदर या तो जीरो है और निगेटिव है। फिर हमने देखा रूरल अर्बन कंपोजिशन, जिसमें हम लोग देखा बेसिकली पॉपुलेशन को हमने किस हिसाब से बांट दिया, कितनी परसेंट पॉपुलेशन गांव में रहती है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन शहरों में रहती है, उसके शहर में कौन कौन रहती से है. रीजन है ये भी जाना। फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी लेवल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं।
on the basis of occupational structure we can also divide population, है ना। ये सारी Yes, चीजें करके sir. हमने देखी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which one of the following country has the highest sex ratio in the world? So you can answer, कौन सा हो जाएगा अपना? Latvia has the highest sex Latvia. ratio in the world. Second Yes, question sir. है, which one of the following figures represent the working age group of 15 to 59. 15 to 59? तो ये सारी चीजें हैं, ये आप आराम से कर सकते हो। सेकंड इसमें क्वेश्चन है, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या होता है, ये Yes, आप sir. आराम से बता सकते हो, Okay, sir. है ना। तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी थी, और इसी के साथ लेट अस डू सम क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, जो एग्जाम में बेसिकली होमवर्क में देते ना। आएंगे। तो ठीक है, तो आप राइट क्वेश्चन डाउन, लिखवा दो। यस सर। राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सेक्स रेशियो? लिखवा देता हूँ मैं। एक मिनट। यस सर, व्हाट इज सेक्स रेशियो? मैं भी लिख ही देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज कितने सेक्स, क्वेश्चन लोगे? एक ही क्वेश्चन है बस। व्हाट इज सेक्स रेशियो? देयर आर टू क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज सेक्स रेशियो? यस सर, व्हाट इज सेक्स रेशियो? व्हाई इज व्हाई इज सेक्स रेशियो अनफेवरेबल? सेक्स रेशियो अनफेवरेबल अनफेवरेबल टू women, टू वुमेन women in some countries of the world, some countries of the वर्ल्ड। world. Explain any four reason. Explain एक्सप्लेन एनी four reasons. यस सर डन। क्वेश्चंस है ना। सबसे पहले बताना है कि आप सेक्स रेशियो क्या होता है, फिर क्यों अनफेवरेबल है, क्योंकि बहुत सारी जगह में देखा गया है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल फ्यूटिसाइड्स होता है, लो इकोनॉमिक स्टेटस है, डोमेस्टिक वायलेंस है ना। ये सारी आपको चीजें बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न, एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ सेक्स रेशियो with suitable examples. ओके सर। एग्जाम्पल्स, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन है। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखा दो, यस सर, बता दो। लिख लो। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और मीन बाय? व्हाट अंडरस्टैंड डू बाय द occupational structure, occupational structure. occupational structure? ओके सर। Name the specific नेम द economic activities एक्टिविटीज or occupational categories, यस सर। occupational categories, uh, categories as identified by United Nations.
यूनाइटेड नेशंस। Yes. क्वेश्चन मार्क। लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से कंट्री का है? यस। Lowest UAE. यूएई का है। हाईएस्ट किसका है? Qatar. हाईएस्ट लैटविया का है। अरे हाँ, है ना? हाईएस्ट कौन सा कंट्री का है? लैटविया का है। और Latvia. लोएस्ट, और वर्ल्ड लेवल पे हम लोग एक कैसे निकालते हैं सेक्स रेशियो? वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली हम लोग पर 100 Formula. फीमेल निकालते हैं। Yes, sir. ओके, तो देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे अभी कितने हैं? 102 मेल्स पर 100 Female. फीमेल्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म. ओवर। कल भी तुम्हारी क्लास है ना? Yes, sir. तो कल हम लोग पॉलिटिकल साइंस करेंगे, और उसके बाद सैटरडे को देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। Okay, sir. ओके।